Hello, my dear students. How are you all? Must be fine. Now, today we are going to do the chapter The Child's Return Part 1. My dear students, it's an interesting chapter and it is divided into two parts. Today we are going to do its first part. So, let's get started. Child's Return Part 1 बच्चे की वापसी भाग एक When Raicharan came as a servant to his master's home, he was just 12 years old and he was asked to look after his master's little son, Anukul. As time went on, the boy left Raicharan's arms to go to school. He went from school to college and after college, he became a judge. Until the time of the boy's marriage, Raicharan was his only servant. तो बच्चे इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो रायचरण है वो एक सर्वेंट का नाम है और वो अपने मालिक के घर में तब से है जब से उनका जो बेटा अनुकूल था वो सिर्फ 12 साल का था और वो उसको छोटे मालिक कह के पुकारता था और वो रायचरण की बाहों में ही पला है। स्कूल तक वो जाता रहा, जब तक नहीं वो उसकी बाहों में रहा। एंड ही वेंट फ्रॉम स्कूल टू, फिर वो स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर कॉलेज से वो जज बन गया और जब तक उस लड़के की शादी नहीं हुई रायचरण का वो अकेला ही रायचरण जो था उसका अकेला servant था. But once Anukul married, Raicharan found that he had two masters instead of one. Soon he was blessed with a son. Raicharan looked after the child so lovingly that the baby soon grew to trust him completely. Raicharan would throw him up in his arms, call him in a funny baby language, put his face close to baby's and take it away again with a laugh. कहते हैं जब उसके अनुकूल की शादी हो गई तो रायचरण को लगा कि अब उसके दो मास्टर्स हैं। दो मास्टर्स कैसे? एक तो अनुकूल और एक अनुकूल का छोटा सा बेटा, क्योंकि जल्दी ही उनको भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। अब रायचरण जो था उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था और जो बच्चा था वो पूरी तरह से उसके ऊपर उसको विश्वास था रायचरण के ऊपर। और जब वो दोनों खेलते तो रायचरण उसको ऊपर उछालता और उसको छोटे छोटे प्यारे प्यारे नामों से पुकारता, तो वो बच्चा जो था बहुत ही खुश हो जाता। ठीक है, और इस तरह से दोनों हंसते खेलते अपना टाइम स्पेंड करें। The child was now able to crawl and would wander outside the house. When Raicharan went to catch him, he would laugh and try to run away. Raicharan was surprised at baby's skill and exact judgment in this. He would say to his mistress, "Your son will be a judge someday." अब जो बच्चा था अब हल्की हल्की क्रॉलिंग होता ना, जैसे ऐसे घुटनों के बल चलना ना, वो ऐसे चलना शुरू हो गया था और ऐसे वो बाहर को निकल जाता था। और रायचरण जब उसको पकड़ता तो वो जोर जोर से हंसता और उससे दूर दूर भागने की कोशिश करता। रायचरण जो था उसकी ऐसी जजमेंट से वो उसको बड़ी हंसी आती और वो अपनी मालकिन को कई बार कहता कि आपका बेटा जो है एक दिन बड़ा होकर पक्का जज बनेगा, क्योंकि इसको हर चीज़ की जजमेंट है कि कब मैं उसको पकड़ने वाला हूँ, कब उसको क्या करना है। It was a great day for Raicharan when the baby began to walk, and his joy was endless when the child called his father Baba and his mother Mama and Raicharan Channa. The old servant wanted to tell the whole world about it. अब ये दिन रायचरण की ज़िंदगी में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जब उस बच्चे ने बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, और उसने क्या था, बड़ी खुशी से उसने जब एक दिन वो अपने पापा को उसने बोला बाबा और अपनी मम्मा को उसने बोला मामा, और आप जानते हो कि रायचरण को उसने क्या बोला? उसने बोला चन्ना। तो वो बूढ़ा सर्वेंट इतना खुश हुआ कि उसका मन था कि वो सारी दुनिया को इसके बारे में बताए। After a while, Raicharan had to entertain the child in other ways. For instance, he had to play the part of the horse holding a string between his teeth. He had to fight with the little boy, and there would be an outcry of it if he couldn't, by some trick, fall on his back, defeated at the end of the battle. अब इस पैराग्राफ में बच्चों की जो आपस में खेलने हैं गेम्स है उसके बारे में बताया है कि कैसे रायचरण जो था उसके लिए घोड़ा बन जाता और लगान को अपने मुंह में पकड़ लेता और इस तरह से दोनों छोटे छोटे गेम्स खेलते। About that time, Anukul was sent to the district on the banks of river Padma. On his way through Calcutta, he brought his son a little go-kart and also a yellow silk coat and a gold cap and gold jewelry. Raicharan loved to take these fine things out and put them on the little boy
whenever he took him out for the walk, and he did it with great pride and ceremony. अब क्या था कि जो अनुकूल की जो पोस्टिंग थी वो हो गई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अब उसका जो नया घर था वो पद्मा रिवर के किनारे पर था, जो कि कलकत्ता में है। और उसने उसके लिए एक छोटी सी जो बेबी कार्ट होती है ना, गो कार्ट, जिसमें बच्चों को झूला लेके जाते हैं, जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो वो उसमें ले गया। और उसके लिए एक येलो सिल्क कोट खरीदा, उसके लिए एक अच्छी सी कैप खरीदी गोल्ड, और उसके लिए सोने की कुछ ज्वेलरी भी खरीदी। तो रायचरण लव टू टेक दिस थिंग्स, उसको बहुत अच्छा लगता था रायचरण को, जब वो उसको घुमाने के लिए ले जाता तो ये सब पहना के उसको लेके जाता। उसको बड़ा प्राइड फील होता है इस चीज़ के लिए कि वो इतने रईस ज़्यादा बच्चे को घुमा रहा है, वो उसका छोटा मालिक है। Then the rainy season came. Day after day, the rain poured down. The hungry river, like a great snake, twisted over roads, villages, and cornfields, covering the tall grasses and trees with its flood. The roar of the main stream could be heard far away. अब देखिए बच्चे, इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में, जो रिवर है, पद्मा रिवर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो एक सरपेंट की तरह लगती थी, एक स्नेक की तरह लगती थी। और जब बारिश बहुत होती थी तो क्या होता था कि ये जो पानी था चारों तरफ फैल जाता था फ्लड के रूप में, सड़कों पर, खेतों में, शहर के अंदर, हर जगह पे। वन आफ्टरनून, और इसकी कहती आवाज़ जो थी वो दूर दूर तक सुनाई देती थी। One afternoon the rain stopped, and it was cloudy but cool and bright, and the determined little boy did not want to stay indoors on such a fine afternoon. He climbed into the go-kart, and the Raicharan dragged him slowly along till he reached the rice fields on the bank of the river. There was no one in the fields, no boat in the stream. On the farther side of the water, the clouds had parted in the west, where the sun was setting in the glorious flame of color. Suddenly, the child pointed in front of him, cried, "Channa, pityo." ठीक है। एक दिन दोपहर तक जो वर्षा थी वो रुक गई, और जो काफ़ी अच्छा मौसम था और लाइट भी अच्छी थी, और जो छोटा सा बच्चा था वो अब इतनी सुंदर दोपहर के टाइम अंदर नहीं रहना चाह रहा था, तो वो जल्दी से अपनी उस गो कार्ट में बैठ गया, और रायचरण जो उसको धीरे धीरे ले जाता हुआ नदी के किनारे ले गया। अब वहाँ पे बच्चे फील्ड के पास कोई भी लोग नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था, ना ही उस नदी में कोई बोट चल रही थी, और बस बादल जो थे वो छाए हुए थे, और जो बताया हुआ सूरज होता ना, उसका बहुत ही अच्छा एक जो सीन क्रिएट हुआ था। उसका जो अस्त होने का जो टाइम, जब सन सेटिंग होती है तो आप देखते हो कितना अच्छा सीन सा बन जाता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अचानक से बच्चे ने सामने की ओर इशारा करके बोला, "चन्ना, वो देखो सुंदर सा फूल।" उसने अपनी बहुत ही प्यारी तोतली सी जुबान में ये सब कहा। A large kadamba tree in full bloom stood in mud close by. The baby looked at it with greedy eyes. Raicharan knew immediately what he wanted. He was saying in the baby language, "Channa, pretty flowers." Raicharan had at once made a small go-kart out of the flower balls of the tree, and the child had been so happy dragging it about by string that for the whole day Raicharan was not asked to pull the real go-kart at all. अब जो था जो बच्चा था, ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द फ्लावर्स। उसको लगा कि मुझे ये फ्लावर्स जो उसने लेने हैं। उसने चन्ना को बोला कि चन्ना देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अब उसने वहाँ से वो जो फूलों की कलियाँ थी ना, उससे एक छोटी सी गाड़ी बनाई, और बच्चा सारा दिन उसके साथ एक छोटी सी स्ट्रिंग बांधी, रस्सी बांधी। अब बच्चा सारा दिन उसके साथ उसको खींचता, उसके साथ खेलता रहा। वो इतना खुश था कि रायचरण को अपनी जो उसकी गाड़ी थी ना, उसको धकेलने के लिए उसने बिल्कुल भी नहीं बोला। But that evening Raicharan had no wish to go climbing through the mud to reach the flowers, so he quickly pointed to the opposite direction and cried, "Look, baby, look at the bird." And with all the sorts of strange voices, he pushed the go-kart away from tree. लेकिन आज शाम को पता नहीं क्या हो गया। आज जो चलना था उसके बिल्कुल भी विश नहीं थी कि वो ऊपर चढ़कर वहाँ से फ्लावर तोड़े, ट्री पर चढ़कर। तो उसने जल्दी से उसकी गो कार्ट को दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दिया, मोड़ दिया, और कहा कि देखो बेटे, वो कितने सुंदर पक्षी हैं।
और अलग अलग आवाज़ें निकाल के वो पुश गाड़ी को आगे आके पुश करने लगा. But the clever child could not put off so easily. There was nothing to attract his eyes. He could not see any bird because it was imaginary. लेकिन जो बच्चा था ना वो बहुत ही एक्टिव था, बहुत क्लेवर था. वो इतनी जल्दी मानने वाला कहाँ था. ठीक है, तो उसने वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं माना, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पे तो कोई भी बर्ड नहीं है, वो तो जस्ट एक इमेजिनेशन है. The little master's mind was made up, so Raicharan said at last, "Very well, baby, you sit still in the cart and I will go get you the pretty flowers. But take care you don't go too near the water." He bared his legs to the knees and struggled through the mud to the tree. लेकिन जब देखा कि बच्चा नहीं मान रहा, तो इसने रायचरण ने सोच लिया, अपना मन बना लिया कि वो जाएगा और फूल लेके आएगा. तो उसने बोला कि ठीक है, तुम बच्चे इस गाड़ी में बैठना, लेकिन तुम्हें यहाँ से कहीं हिलना नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें लेके आता. उसने अपनी जो धोती थी उसको थोड़ा ऊपर किया और वो उस कीचड़ में वृक्ष के पास चला गया. The moment Raicharan was gone, the little master's thought raced off to the forbidden water. The baby was the river rushing by. The child grew excited by those merry waves. He got down quietly from the go-kart and ran off toward the river. On his way, he picked up a small stick and leaned over the bank of the stream, pretending to the fish. The mysterious voices of the river seemed to be inviting him to enter their playhouse. लेकिन बच्चे तो बच्चे ही है ना. जैसे ही रायचरण गया तो उस बच्चे का मन थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि अट्रैक्ट हो गया पानी की तरफ, तो अपनी वो गो कार्ट से धीरे से उतर आया और वो धीरे धीरे वहाँ पे खेलने लग गया. फिर उसने वहाँ से एक छोटी सी स्टिक ली और उसको वो पानी में मारने लगा और इस तरह से खेलने लगा जैसे कि वो मछलियाँ पकड़ रहा हो. और कहते जो अजीब अजीब सी आवाज़ें थी जो रिवर की, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसको इन्वाइट कर रही हो कि आओ और तुम मेरे आगोश में समा जाओ. Raicharan picked the handful of flowers from the tree and carried them back, smiling to little boy. But when he reached the go-kart, it was empty. He looked round on all sides, but there was no one there. जैसे ही वो अपने फूल हाथों में फूल पकड़े हुए आया, तो वो वापस वहाँ पे पहुँचा और अपने छोटे बच्चे की तरफ देख के उसने स्माइल की. लेकिन जैसे ही वो गो-कार्ट के नज़दीक पहुँचा, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं था. In the first terrible moments, his blood frozen within him. The whole world swam around like a dark cloud before his eyes, and he gave one heartbroken cry, "Master, master, little master." जैसे ही उसने देखा कि बच्चा नहीं है, उसके मानो कि उसके अंदर जो खून था वो एकदम से फ्रीज हो गया, जम गया, और उसको सारा जो सब कुछ उसको घूमता हुआ दिखाई दिया. उसकी आंखों के आगे काले बादल छा गए और उसने एक बहुत ही दुख से बोला कि मास्टर, मेरे मालिक, छोटे मालिक, आप कहाँ हो? But no voice answered. Channa, no child laughed merrily back. He heard no baby voice welcoming his return. The noisy river ran on as though it knew nothing at all. He had no time to attend such a small human events as the death of child. अब जैसे उसने आवाज़ लगाई तो कोई भी आवाज़ वापस उसको नहीं आई, ना ही कोई बच्चा उसकी आवाज़ सुनकर हंसा जैसा कि वो छोटा बच्चा करता था. अब वो बहुत परेशान हो गया. ठीक है, उसको किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आई, और जो रिवर थी उसकी जो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी और उसको लग रहा था कि उस रिवर को कोई फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी. और उसके लिए बहुत छोटे से इंसिडेंट था कि किसी छोटे से बच्चे की डेथ हो गई हो. एक रिवर के लिए ये इंसिडेंट कोई खास मायने नहीं रखता था. Darkness came. Raicharan mistress grew more and more anxious. She sent men out everywhere to search. They were all with lamps in their hands and reached at last the banks of Padma. शाम हो गई. रायचरण की जो मिस्ट्रेस थी, जो उसकी मालकिन थी, उस छोटे से बच्चे की मम्मा अनुकूल की वाइफ, उसको बहुत फिक्र हुआ. उसने अपने कुछ सर्वेंट्स, दूसरे आदमी को भेजा. वो लैंटर्न्स लेके, लैम्प्स लेके सर्च करने चले गए और फाइनली वो पद्मा जो रिवर है उसके बैंक के उसके किनारे के पास पहुंचे. There they found Raicharan rushing up and down the fields like a stormy wind, shouting in the voice of despair, "Master, master, little master." और वो जो थे
वहाँ जब पहुँचे तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तूफान जैसे आ रहा है और उसमें अभी तक रायचरण चिल्ला के बोल रहा है, मालिक मालिक छोटे मालिक. When they got Raicharan home at last, he fell at the feet of his mistress. They questioned him and asked him repeatedly where he had left the child, but all he could say was that he knew nothing. वो जाते ही अपनी मालकिन के कदमों में उसने सर रख दिया और उसने उससे पूछा कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन वो उसने कहा कि उसके बारे में कुछ नहीं जानता. एवरीवन बिलीव्ड दैट चाइल्ड हैड बीन ड्रॉन इन द रिवर. हर किसी का ये मानना था कि शायद बच्चा जो था वो रिवर में डूब गया है. बट देयर रिमेन वन स्मॉल डाउट. लेकिन फिर भी एक शक था दैट अ बैंड ऑफ जिप्सीज हैड बीन नोटिस्ड आउटसाइड द विलेज दैट आफ्टरनून एंड सम सस्पिशन rested on them. In her terrible sorrow, the mother even thought that Raicharan himself had stolen the child. अब देखो बच्चे, एक तो जिप्सीज होते ना खाना बदोश, इनका एक ग्रुप जो था वो वहाँ पे उनको मिला था कि वो घूम रहा था, तो उनको ये भी शक था कि हो सकता है कि कहीं उसने बच्चे को ना उठा लिया हो. किसी ने कहा कि वो नदी में ना डूब गया हो. लेकिन जो उसकी बच्चे की मदर थी ना, अनुकूल की वाइफ, उसको थोड़ा शक लगा. उसने कहा कि कहीं ये रायचर ने खुद तो नहीं इसको चोरी कर लिया. शी कॉल्ड हिम aside and begged him pitifully. अनुकूल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि बेवजह शक नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने उससे कहा, रायचरण गिव मी बैक. उसने कहा कि ओ सॉरी, उसको बच्चे को साथ, रायचरण को साथ साइड पे ले गई और उसने कहा कि तुम इस मेरे बच्चे को वापस कर दो और टेक मी एनी मनी यू वांट बट गिव मी माई चाइल्ड बैक. कि तुम जितना भी पैसा मुझसे चाहते हो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम मेरे बच्चे को वापस कर दो. रायचरण ओनली बीट हिज हैंड इन रिप्लाई. रायचरण जो था वो बहुत ही रोया. उसने अपना सिर पटक दिया. इन हिज एंगर हिज मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड हिम आउट ऑफ द हाउस. और गुस्से में उसकी मालकिन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया. अनुकूल tried to argue with his wife about the wholly unjust suspicion. Why should Raicharan do a wicked thing like that? He asked. अनुकूल जो था उसने कुछ कहने की, समझाने की कोशिश की, आर्ग्यू करने की कोशिश की अपनी वाइफ के साथ कि ऐसा वो क्यों करेगा, ऐसे बुरा काम वो क्यों करेगा. द मदर ओनली रिप्लाइड. मदर ने सिर्फ यही आंसर दिया, द बेबी वॉज वेयरिंग ओल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स. कि बच्चे ने तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे. हु नोज, क्या पता उसका मन जो था बेईमान हो गया हो और उसने बच्चे को चुरा लिया हो. इट वॉज इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू विद हर आफ्टर दैट. और इस बात के बाद अनुकूल जो था उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वो अपनी वाइफ के साथ इस बात के ऊपर कोई बहस या आर्ग्यू. This is the end of part 1. We will meet soon with the next part. Till then, it's a time to say bye bye.